back to Imposters. Today we are just reacting to random shit on the internet. Because you're too tired. Let's Okay, start. let's start. The first is When I realized you can work so hard and still be poor, that's when I started praying for God's grace. This is Damn. actually so true. Yeah, because I thought that we'd be reacting to some funny things, but ये तो कुछ ज़्यादा ही real हो गया. Exactly, bro. ऐसे वही मतलब you are working very hard but you are still poor. Then you're like, हाँ, भगवान ही बचा सकता है. मतलब because like we are too young, Yeah. है ना, but we do realize कि ऐसा होता है. हाँ, But I believe कि this might be the hardest for people in their late 30s. correct. है ना, because like तुम until early 30s also people are still trying and hustling and कि नहीं कुछ तो होगा. Yeah. And by the time you're in your late 30s, हाँ, maybe you have a young kid like who's almost in like middle school or something, हाँ. and like a spouse and example parents are getting old, so they might be sick as well. And you can see कि मैं 40 साल का हो रहा हूँ, Yeah. and I still haven't done like Made it. massive shit that I Yeah. wanted to initially do. Yeah. तो ये उनके लिए बहुत हार्ड हिटिंग होगा ऐसा मेरे को लगता है. और ऐसे काफी मतलब हार्ड वर्क ऑफ कोर्स इज द मेन हाँ, thing to be successful, but a lot of times luck also plays a big role. luck has to be there many a times. ऐसे मतलब lot of people work hard, bro. ऐसे lot of people हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर जॉब करेंगे, but there are 1,000 people, more than 1,000 people who are working harder than us. But in the end, God's blessing, you say luck Destiny is there. हाँ, वो destiny plays a lot of role क्योंकि कितना भी हार्ड वर्क कर लेगा लिखा नहीं तो कुछ होगा नहीं. हाँ मतलब वही कि मतलब बट या एट द सेम टाइम योर जॉब इज जस्ट टू वर्क हार्ड. Exactly. है ना, लाइक कोई लोग के केस में एक्चुअली ऐसा मेरे हिसाब से लाइक ऐसा होता है कि अगर मेहनत करते तो कुछ हो जाता, हाँ. बट एग्जाम्पल इसने की नहीं तो समटाइम्स इट डजंट हैपन बिकॉज Pretty sure. मतलब I'm still a fan. I don't know why, because I still feel कि बहुत potential है. तो वीडियो में क्या बॉम्ब नाम से 50 लड़कियों 5-6 लड़कियां नाच रहे हैं. मेरा बर्थडे भी ना सेलिब्रेट करूंगा. हाँ, वो बोल रहा है बेचारा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेगा क्या आदमी. But I read some astrologer's tweet on Twitter on X about him. Apparently like a well-known like astrologer. I don't know how true it might be, but he had written that Prithvi Shaw won't be able to make a comeback. Yeah, but in his destiny there is politics written, and like he'll have a very good political career. Yeah. हाँ, तो अब देखते हैं. I hope for a comeback. I genuinely, because like टैलेंट तो too much insane talent. है, वो insane talent है, but वो ये But मतलब फिटनेस पे भी नहीं है. वो पता है वो एक बीच में कितना मोटा हो गया था, तो उधर से लोग का चालू है कि भाई मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. हाँ, मतलब हमारे किसी वो like for an international cricketer, Yeah. like I think right now that like one of the top 3 criteria to be fit and everything. Yeah. But even if you are like not that conventionally fit, but अगर फिर भी run बना रहे हो तो that is what matters. But he was really fat, right? Yeah. You have that opportunity. Like thousands of people are dying to be there. You have that opportunity, at least eat right. Yeah, eat and train right. मैं वही सोचता हूँ कि मतलब I am just hoping he like doesn't have any kind of health problems or something जिसकी वजह से like he has gotten fat. But I'm just thinking that he might have everything at his disposal, from the top trainers to like everything to eat, है ना, because he has earned like a good amount of money till now. तो अभी पता नहीं क्या सीन. Who knows? Next one. Her, I have a boyfriend. Well, that's your opinion. That's Bollywood summarized for everyone. For everyone out there. Every fucking actor. But ये कितना मतलब ऐसा ठीक है, ऐसा फनी है, बट काफी जगह कितना ट्रू भी है. मतलब भाई लौंडे पीछे पड़ जाते हैं. मतलब आई टेल यू अबाउट दिस. अभी जो से रिसेंट कॉन्सर्ट हुआ दिलजीत में, वहां पर ही मतलब मैं, मेरा भाई और 2 लोग थे मेरे भाई के एज के. तो हम लोग थे लाइक अंटिल इंटरमिशन साथ में थे. फिर इंटरमिशन के बाद दोस 2 guys, they were from some other area but we know them. तो वो उसको बंदे को उन लोग के स्कूल वाली मिल गई, एंड दे आर माय फिर भाई एज ओनली लाइक 19-20. मैं तो उनसे बड़ा हूँ. तो वो फिर बंदी दिखी तो एक तो बंदा चालू हो गया कैसा बंदी के साथ. हाँ, लाइक उस पे ऐसे लाइन मैन मार. एंड मैंने मेरे भाई को दिखाया कि वो बंदी ना उस बंदे को फोन पे दिखा रही है उसके बॉयफ्रेंड के फोटोज कि ऐसा लाइक इंटीमेट फोटोज कि फिर मिरर सेल्फीज वगैरह है एंड दे आर किसिंग एंड ऑल उसमें. ठीक है, तो मेरे भाई हंस दिया मेरे भाई को देख. तो अभी वी बीइंग गुड पीपल हमको लगा कि ठीक है पीछे हट जाएगा शायद,
वो फिर भी लगा हुआ है, बंदी उसको भाव भी दे रही है, बंदी उसको भाव भी दे रही है, एंड दे आर लाइक रैंडमली हगिंग फॉर लाइक अ मिनट स्ट्रेट, एंड जो थोड़ा बहुत लोग सब करते हैं ना कॉन्सर्ट्स में, ऐसा एकदम पूरा फिर कडलिंग, ऐसा एकदम ऐसा टाइप, ऐसा एकदम पूरा प्रॉपर रोमांटिक शिट. And my brother, 20 years old, almost the same age, and those people like were 1 year younger to him. मेरे भाई ने बोल दिया कि भाई ये क्या जनरेशन है. मैं बोला तू तो 20 साल का, वो 19 साल के, मेरे बारे में मैं 24 साल का, मेरे को कैसा लगता है ये सब देख के. Exactly bro, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो बंदी झूठ बोल के सब कर रही है, बॉयफ्रेंड के पिक्चर्स दिखा के नेक्स्ट मिनट यार fucking. हाँ मतलब मेरे को लगा कि भाई कैसे, जब मैं इसलिए मैं बोलता हूँ भाई मैं तो अरेंज मैरिज में भी खुश हूँ. जब भी अगर कोई बहुत शांत सिंपल ऐसा सोबर टाइम फैमिली ओरिएंटेड है, तो ये सब बहुत वो फैमिली वो ना बहुत फैमिली ओरिएंटेशन पे भी आ जाता है आपके, मेरे हिसाब से रूट्स वही से आते हैं कि आपको ऐसा लंबा निभाना आता है क्या रिश्ता. तो मेरे को देख के लगता है अरे क्या है यार, पिक्चर्स वो बंदा तो चल बंदे चूते होते हैं, नॉट गिविंग हिम ऐसा आपकी लीवे क्या होती है, बट होते हैं बंदे चूते हैं, बट यू नीड टू ब्रो, यू आर शोइंग हिम पिक्चर्स एंड यू फकिंग लिटरली रीमेकिंग दोस पिक्चर्स विद हिम. और भी खींच नहीं रहा, काश को खींच लिया होता, उसके पास पहुंच जाता. नेक्स्ट, ग्रतुंका मीनिंग क्राइंग एंड मास्टरबेटिंग साइमल्टेनियसली. Gratunka is the Swedish word for crying and masturbating simultaneously. Wow, this blew up, lol. I'll be on Twitter more soon. No, but what is this? I miss you. Who is doing this? कौन पे कितना चीज सुन के मैं लग रहा है मतलब लोग के क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या फैंटेसीज होते हैं, मतलब कुछ भी है. मतलब क्राइंग एंड मास्टरबेटिंग, the only thing that I can think of is ठीक है तो एक्स के बारे में सोच रहा है, you were madly in love with her and she broke up with you and you are horny as fuck but you want to miss her also. So just doing it simultaneously. तेरा रोते समय कैसे खड़ा हो सकता है? Exactly, मैं वो सोच रहा हूँ. How are you aroused while crying? It's just fucking weird, bro. मतलब और ये मतलब I will actually Google if this is a real word, but क्या है ये, मतलब क्या क्या fantasy है? At this point I'm like we said कि I'm glad कि ex hamster वगैरह का कुछ वो है नहीं ऐसा कुछ Spotify rap जैसा, और ना क्या क्या की सर्चेस में दिख जाता, कुछ भी निकलता है bro, genuinely कुछ भी निकलता. Number 5, who is as versatile as The Rock in Indian cinema? Same in every fucking movie. किसी ने कमेंट सेक्शन में डाला महेश बाबू के फोटोज. Like इतना साउथ का तो आइडिया नहीं है. From 4 different movies. But यहाँ पर 2 ही दिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए. But this is so true, bro. Rock चारों में same है bro, ditto. And the sad part is I can't make out ये कौन सी मूवी से है चारों. Exactly भाई. वो केविन हार्ट के साथ कौन सी थी? वो जंगल वाला. तो मैं नाम भूल गया. बट ये मेरे को एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना तो ये रॉक को दिखाएगा ना, रॉक भी बोलेगा मेरे को नहीं पता है कौन सी मूवी से आधे घंटे में शूट किए थे. फास्ट एंड फ्यूरियस में भी ब्रो ऑलमोस्ट सिमिलर रुके, पर उसने वो वेस्ट पहना है और वो फर्स्ट में था, इनिशियली नहीं था, फिर बाद में वो वेस्ट पहनना चालू कर दिया. वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है. बट हिज एक्सप्रेशंस आर आल्सो द सेम. मतलब ऐसा ही लगता है, मतलब आई डोंट नो हाउ, लाइक आई नो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. But skill wise in acting, I don't know. I don't think he has he can play only one genre of that. Either funny plus that through stubborn character. Action and all. I think emotional character also. I don't think. I think he's a very good businessman. That's why he's lasting so long. Yeah. But the real question: who is as versatile as him in Indian cinema? Arjun Kapoor. I think उसे फिर भी with the Singham 3 वगैरह, Singham 3 क्या 2 states वगैरह उसने कुछ किया है. I'll say a perfect name as for me, Tiger Shroff. मैंने Tiger Shroff के इतने मूवीज ही नहीं देखे होंगे. मैंने भी नहीं देखे, किसी ने नहीं देखे होंगे. But the point is, वो same action कर रहा है हर एक में. That's true. वो ऐसे I would love to see. I know that he comes like with that baggage of being a nepo kid and all. Correct. But I think he should try different genres if he's getting those scripts. Like Tiger Shroff doing like an outright comedy, or something very very emotional, or like prime example I think is Varun Dhawan. Correct. From doing Main Tera Hero to Badlapur to October. Legit, he has tried a lot of things. तो फिर बद्री कुछ नहीं भी चले. सुई धागा. सुई धागा. मतलब अभी उसकी आ रही ना ऐसा क्या बोलते हैं अपना बेबी जॉन आ रही फिर 25 दिसंबर को.
नॉट स्पॉन्सर्ड. कब तक एपिसोड आ जाएगा ये? हाँ. व्यूज भी नहीं बट मतलब कि लाइक आई होप कि यू ऑफर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ विद दैट कि मतलब ट्राई मतलब अभी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो अगर उसके कोई ऐसा आ रही है ना मूवी तो पक्का एक्शन मूवी है. एक्शन मूवी एग्जैक्टली. वो एक बीच में वो फेस था, वो बच्चों वाली मूवी कर रहा था फ्लाइंग जेट. एक और आई थिंक उसकी सुपर हीरो की कोई तो मूवी आई थी. टुनटुन का सुपर हीरो ये मतलब मूवी थी. ये मेरे को ये मालूम है कि रैंडम नाम है, सुना सुना लग रहा है. कोई तो उसकी आई थी. वो 2-3 उसने बैक टू बैक ऐसे चिल्ड्रन एक्शन मूवीज ही वाज ट्राइंग एंड ऑल ऑफ देम जस्ट फकिंग. वो एक में जैकलिन फर्नांडिस भी थी एंड ऑल ऑफ देम डिप्ड. मतलब इट्स लाइक ठीक है ब्रो, आई गेट इट. देखो एक्शन कर रहा है तेरे को तो पता like है. like he's very flexible. He's an amazing dancer as well. He's very flexible. He has an amazing body. Body तो top notch. बहुत crazy है but हाँ मतलब उसको कुछ तो और ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसको पता है ये चल नहीं रहा है. वो उससे ऐसा नहीं कि सब अच्छे हो रहे हैं. जॉन किंग हो गया वो. मतलब like फिर ऐसे केस में if you मतलब उसका thought process कुछ और like और होगा because in the show business it's also about कि you know what you like plus what people want to perceive of you. Correct. So if he feels कि he wants to be known as an action star, then you know maybe he can go ahead with it, you know whatever there. But if he wants to like really be known as a like you know as an actor or as a star also, तो वो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा एक्टर भी हूँ. तो ऐसा known कि एक्टिंग की थी भाई उस मूवी में. But ये ऐसा मेरे को तो बहुत क्रेजी लगता है. उसका बाप कैसा है, ये कैसा है, एकदम ऐसे टोटल 4 पौधे और ये बंदा एकदम शांत ऐसा एकदम. he's very quiet. मतलब very calm, very sorted कि हाँ उसको पता है. वो एकदम बोलते हैं ना decent हो रहा है. हाँ मतलब कि like you know if you see him shirtless and if you see him the way he talks, it's like मतलब कि you wouldn't kind of you know visualize him talking that way. मतलब कि I'm not saying that he's girly but he's like very soft spoken, seems very sweet and ऐसा calmly एकदम उसका like his voice is also not very heavy. Exactly, he's calm, he's not loud, whereas his dad is like पौधे. I don't know. Tiger Shroff seems like an introvert, and Jackie Shroff seems like he'll talk to anyone and everyone. And he bullies people, bro. I can't imagine fucking Tiger bullying anyone. नहीं मतलब कि वो तो I think he has also told in like you know in an interview also कि मैं parties में बहुत कम बात करता हूँ. और वो तो बोला था कि एक बार कि मैं शायद से वो I think जल्दी भी पहुंच जाता है. कैसा आता है, खाता आता है. Who would you last 5 minutes with? Prime Mike Tyson or Violet Myers? I would probably last 10 seconds with both. No need to explain Violet. But Tyson, I just feel like he's very tight and it would feel so good. Best one so far. You didn't see it coming. You didn't know what was going to happen. वो ऐसा बोलते हैं ना, you had me in the first half. Not gonna lie. But in like you know in that Tyson and the Jake Paul fight, have you seen वो जाके वो सब Netflix वाले उसका इंटरव्यू कर रहे थे and then they show his ass. Jake Paul and वो कॉल लोगन बॉय से देख रहे हैं. They are like what the fuck is happening? They were confused कि क्या दिखा रहे हैं लोग. मतलब now at this point everyone is thinking कि is this scripted कि it happened for real by accident. Man is not even. He's like fuck it, क्या ही हो रहा है, मैं चल रहा हूँ पीछे. Showing his ass cheeks, but man, that guy has a dump truck. 10 seconds, bro. I wouldn't last 5 seconds after seeing that. Right, but मतलब कि imagine. I can't go deep. मैं कुछ बोलने वाला था, but you can go deep. मैं कुछ मैंने वैसे सोचा, मैं बोलने गया and I was like, आज मेरे को माइक टाइसन का चेहरा आया मेरे दिमाग में. Like नहीं, मैं आगे नहीं बोल रहा इसके आगे कुछ. हाँ. It's so embarrassing, man. What is this? किसको अरे है कौन? ये है कौन? ये बंदा कौन है? अरे लिटरली कोई नहीं, कुछ देख भी नहीं रहा है. एक बंदा नहीं देख रहा है. He's actually happy, bro. एकदम smile करते. मतलब कितना खुश है आदमी. मतलब I don't know why, but who is this guy? Sorry, I don't know him. No fucking clue, bro. I think कोई है ये लोग का फॉर्म, मतलब कोई इनॉग्रेशन होगा इसका और ये बंदा ऐसे ओपनिंग के लिए आया रहेगा कि ऐसा कोई रेलवे का कोई चीफ डिपार्टमेंट का होगा. बट फॉर हिम टू थिंक दैट वो पीपल एक्चुअली केयर, ऐसे देख रहे हैं इसको बाय बोलते हुए ट्रेन जा रही है. पीपल केयर, लोग ही नहीं है. केयर का बात नहीं है. I think this is equivalent to people who have like you know 5 or 10 people on their spam or you know main account and they have like 1,000 posts. सब कुछ हो रहा है. Bro, I know a person in my office
she's very close, but I'm going to say this. उसका तो ऐसे पूजा है तो नहीं पूजा नहीं है, वो डिजाइन पेज है। वो ब्रो वैसे उसका वो अपने बॉयफ्रेंड का एक पेज है और उसके बॉयफ्रेंड को यही फॉलो करती है। उसके बॉयफ्रेंड रील्स भी एकदम प्रॉपर एडिट करके वो इस पेज पे डालता है हाँ। और यही लाइक और कमेंट करती है। बाकी उसमें एक ही फॉलोवर है, एक ही फॉलोवर है, एक ही फॉलोइंग है, वो ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। वो इक्विवेलेंट है आपस में। एग्जैक्टली ब्रो, और ऐसे खुद ही 4-5 कमेंट करेगा, सो क्यूट, दिस इज सो नाइस। आई एम लाइक नोबडी रीडिंग इट, यू कैन बी नॉर्मल, क्या क्या डाल रहा है भाई। कोई रील है तो पर व्हाट्सएप चैट पे बोलने में क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली भाई, व्हाट्सएप पे सेम वीडियो भेज दो ना भाई। हाँ, मतलब तुम तो भाई इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो ऐसा, कमेंट सेक्शन में चैट, कमेंट सेक्शन में चैट। अरे ये मेरे को याद है एक स्टोरी था दैट आई हैड हर्ड पहले in 2014, 15, 16 somewhere, when you know the Facebook era was like at the peak and really active. So there was a senior in school so you know who was dating me, like this girls like अपना some random girl, and वो ना बंदी के बाप को पता चल गया कि इनका कुछ चालू है। तो उसके बाप ने उसका सब नंबर ब्लॉक वॉक करवा दिया, सब कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम मतलब जो भी होगा सब बंद। एंड अब इनके पास बात करने का कुछ जरिया नहीं है, फोन नंबर भी ब्लॉक्ड है। तो व्हाट दिस गाइज यूज्ड टू डू is they used to chat in the comment section of some big account or something. तो वो ऐसा कमेंट में हाई लिख रहा है, वो उसको रिप्लाई करिए हाई, वो लोग उस पे चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उनको कौन देखने वाला है क्योंकि इट इज लाइक अ वेरी बिग पेज, उस पे इधर लाखों कमेंट्स हैं, देयर चैटिंग। मेरे को भी याद है, मतलब आई एम इनटू ब्रांड मैनेजमेंट, तो वो लोग का अकाउंट मेरे पास है बिकॉज़ वी डू द पोस्टिंग। तो एक ब्रांड के पेज पे देयर आर वो आते हैं ना रिक्वेस्ट, ऐसे रैंडमली लोग भेजते रहते हैं अकाउंट पे। तो एक ब्रांड के अकाउंट में देयर आर फकिंग 10K 20K ऐसे रिक्वेस्ट देयर। तो हम एक दिन ऐसे ही देख रहे थे कि ब्रो क्या भेज रहे हैं लोग। तो स्टार्ट में तो लोग ऐसी रैंडम रील भेज रहे हैं क्योंकि बोलते हैं कि सेव करने के लिए ये अकाउंट में भेज देता हूँ देखने के बाद में कुछ ये रहेगा, तो ऐसे कुछ भेजे हुए लोग। एक पेज खोला ब्रो, उसमें एक बंदे का सेक्स टेप है, मतलब उसने वीडियो भेजा है एक बंदे के साथ, ही इज हैविंग सेक्स, और उसने बड़ा सा मैसेज लिखा है कि दिस इज द लास्ट टाइम वी आर हैविंग सेक्स, आई एम नेवर मीटिंग यू अगेन, इज द वर्स्ट। एक मिनट, ये तुम्हारे ब्रांड के डीएम पे भेजा, डीएम पे उसका पूरा सेक्स टेप है वेयर शी इज रिमूविंग एवरीथिंग। फिर वो बंदा आ रहा है, उसने पूरा मैसेज किया है उसके ब्रेकअप करते हैं, दिस इज द वर्स्ट सेक्स आई एवर हैड। ये लेजेंड ब्रांड के पेज पे, बिकॉज़ दे थिंक कोई कौन रीड कर रहा है बैठ के, उसे सब इधर भेज के रखा है। तेरे कंपनी में जॉब मिलेगा क्या? प्लीज मेरे को दे दे भाई। रैंडमली हम ऐसे देख रहे थे ब्रो कि क्या दिख गया ब्रो, व्हाट द फक वाज दैट। नहीं पर मेरे को सोच के ऐसा लग रहा है कि बिकॉज़ यू ऑल आर जस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस शिट। आइंस्टाइन, टाइम इज रिलेटिव, मुस्लिम्स ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कुछ इसके बारे में, बट इमेजिन हैविंग ऑलमोस्ट like you know like you have one person that you can actually fuck around the clock, pun intended। बस आप ज्यादा नहीं, डर लगता है। नेक्स्ट, अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसके तुम हकदार हो। बहुत डीप काट दिया भाई। कहाँ से मिडिल ग्राउंड नहीं, यहाँ से बात से यहाँ नहीं आया। But actually, when you think of it, like you'll like there will be 10-15 years that you are struggling and hustling and sacrificing, and one day it will happen, and then you'll not even realize how it happened, how it happened, and you'll be like कि overnight हो गया। But उस time like खुद को भी first thing वही दिखता है कि यार कल तक ऐसा था, आज ऐसा हो गया। But वो 10-15 साल पहले जो चल रहे थे वो एक्चुअली हम भूल भी जाते हैं एक पॉइंट के बाद, क्योंकि जस्ट लाइफ कीप्स मूविंग, चल रहा है, वो एक रूटीन बन जाता है। और काफी टाइम जैसे अभी वो रणबीर अलावा जैसे भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स समथिंग, एंड ही वाज लाइक ओके ठीक है। ऐसे मैं बचपन से मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि ब्रो 1 मिलियन 10 मिलियन, और जब एक्चुअली होता है यू आर लाइक ओके नेक्स्ट because it's like very default mode for you, because you're he is at that stage where he is at 10 million and he has everything to lose. He has everything to lose because वो 10 मिलियन का कभी 8 मिलियन या 9.8 मिलियन भी होगा ना, 9.9 मिलियन भी, उसको रात को नींद नहीं आएगी।
he'll be like ये degrowth कैसे हो गया, हाँ है ना, because like he'll be like कि मेरा content नहीं काम कर रहा, मैं सही सवाल नहीं पूछ रहा, गेस्ट ढंग के नहीं है ना। तो मतलब अभी के लिए कि इतना सा भी like example if your subscribers let's say are growing at 2% some random number 2% per month, वहां जहाँ पे 2% के बजाय 0.5% भी बढ़ाना per month, maybe he will like it'll be lose his disturbing sleep. for him, क्योंकि वही है ना, मतलब you have a goal और एक पॉइंट के बाद वो गोल रूटीन बन जाता है कि ठीक है अभी हम अचीव कर रहे हैं, वो उसके बाद वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं बट हमें रियलाइज नहीं होता बिकॉज यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि चल ठीक है नेक्स्ट ईयर करना है, जैसे अपन भी लास्ट ईयर चालू करना इतनी बड़ी बात थी, करेक्ट, नाउ वी आर फकिंग शूटिंग एवरी वीक, और आज भी लाइक यू नो फिर बिटवीन कट्स आल्सो जस्ट यू नो वी वर जस्ट ऐसा थिंकिंग एंड टॉकिंग कि हमको ये सब करना है, तो अभी आगे टीम से बात करेंगे कि ये सब हम करेंगे। तो अभी पता है कि अभी के लिए अभी गोल क्या है इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की ये सब चीजें थोड़ी फाइन ट्यून करनी है, इस पे काम करना है। जो पहले का हो गया वो तो भूल भी गए। नेक्स्ट स्टेज हम ये सोच रहे थे कि ये करना है, अभी करना है, बट फॉर अस दिस इज सो नॉर्मल कि ब्रो अभी ये तो ठीक है, अभी आगे इसके बाद क्या करना है। करेक्ट, दैट्स लाइफ। Yeah, Malki, because and like you know another fun fact is that you know like example just a random number again 10 years you're slogging your ass off and nothing is happening, and in that 11th year 12th year things will happen so quickly and you'll be super successful and rich and you'll be like very happy, like you might be in depression and now you'll be happy and all those things, but it will happen एकदम एक साथ, and then you will also feel like कि ये सब एक साथ हो गया, इतनी ऐसा जल्दी हो गया, and you will not be able to digest it somehow, but also कि वो 10 साल इतने shit थे, you know वो एक साथ सब एक साथ आ रहा है अभी, everything is just coming together, तो and you can't literally process that it. 10 years का success money happiness is coming in those 2 years. So मतलब कि there's this term that I always believe in is that compensation for hard work. Like if there's a thing A, I worked really hard for it and I wanted it and I manifested it, but it didn't happen. I wasn't successful at it. And there's a thing B, जिसमें मैंने बहुत कम मेहनत की, but still I aced it. And I'm like कि कैसे? मैं तो किया नहीं, मेरे से बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसमें और वो मे बी फेल हो गए। जैसे एग्जाम से बहुत लाइक ना एप्लीकेबल होता था बिकॉज 8 पेपर्स थे, एक पेपर के लिए मतलब सबके लिए पढ़ा, एक के लिए तो बहुत पढ़ा, बट एग्जाम में जाके ऐसा आ गया कि भगवान को बोल रहे कि भाई तू भाई 40 नंबर दे दे भगवान, हम ठीक है। और दूसरे पेपर के लिए मतलब ऐसा रातों को नींद नहीं कि भाई ये कुछ पढ़ाई नहीं, रिवाइज नहीं किया और उसमें एग्जाम्पशन आ रहा है 60 70 मार्क आ रहे हैं, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव इन कॉम्पेंसेशन फॉर हार्ड वर्क कि कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो यू जस्ट नीड दैट वन थिंग टू इट, एंड वन मोर टर्म दैट आई केम अक्रॉस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। या तो मतलब मेरे को मतलब बुक्स पढ़ा, बट मेरे ये बॉस ने किसी और को बोला था कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि मतलब ऐसे नाउ वी आर सैक्रिफाइसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल पीपल ऑफ आवर एज फ्राइडे नाइट है पार्टी करते हैं, नॉट लाइक हम नहीं करते, ऑफ कोर्स हम करते हैं, बट हमारा प्रायोरिटी ये है हम अपने स्पेयर टाइम पे हम वो सब चीजें करते हैं। तो ऐसा कि वी आर डिलेइंग ऑल द गुड थिंग्स राइट नाउ इन एंड वी आर वर्किंग हार्ड बिकॉज वी वांट टू एंजॉय लाइफ इन लार्जर पिक्चर कि हाँ चल जब हम हो जाए 5 साल बाद कि हमें फिर जिंदगी की टेंशन नहीं है। ये वो टाइम की भी बात है बिकॉज यू नो फॉर दिस इज द राइट टाइम टू you know फिर work and like you know for do your shit because अभी एग्जांपल कोई एक हमारे ना पूरा हफ्ता है and we both have our own you know work commitments and you know फिर family commitments and all those things, but हमको पता है कि एक दिन तो शूट करना है and उस दिन चाहे किसी दोस्त का भी बर्थडे है but we know कि अगर आज शूट नहीं गया तो अगले हफ्ते वीडियो नहीं जाएगा, तो we'll skip that birthday. Exactly. वो करना ही पड़ेगा वरना इतना वो जो कंसिस्टेंसी दैट थिंग ऑन YouTube इज सीरियस, you need to be consistent with your तो मतलब कि इसलिए मे बी इन 12th or something we'll be like कि नहीं यार कैसे स्किप कर सकते हैं ये वो, बट नाउ we'll be like कि ठीक है 10 बार सॉरी बोल देंगे बट नहीं कर सकते बिकॉज़ तेरे बर्थडे की गाड़ी हमने दी तू देना। नेक्स्ट Will Smith outside with his new Tesla robot. Oh my fucking god! I literally started reading it without seeing the image. With Tesla road पे and I saw that fucking image. But imagine slapping one of the best comedians in the world for this. No, but he might be you know like you know very emotional at that stage. Yeah. Slapping was a bit extreme. Yeah, and you never know, it might be a PR move. PR again, it's show business. It's show business. Anything can happen. Like people who don't even know about that thing, like literally just सबके feed में आ गया था. It worked for right reason, wrong reason, it worked. Prostitution begins the moment you feel that you are too beautiful to date a struggling man.
किसी ने कमेंट्स पे लेके prostitution starts when you think you're too beautiful to hustle. नीचे बंदी लिखती है that's fine. That's fine, bro. Whatever it is, bro. It's like that you know, Indianized version of like, you know, someone like, you know, telling you something and he or she might be right. And like, हाँ तो. Like, Love it. That's fine. Casually, that's fine. But when you read it, Selective argument, bro. like फिर when you read it, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है oh, this is actually, I mean, hitting hitting right. Some people might get offended. Yeah, some people might get offended because, and like, see, be it you, me, or anyone like who is like seeing this, वो कहीं ना कहीं ये पढ़ के ऐसा सोचेगा oh, is it? बात तो कहीं ना कहीं सही है. शायद सही हो सकती है. अब पता नहीं कितना रुपए. I think ये ना दूसरा वाला जो है starts when you think you're too beautiful to hustle. वो जगह थोड़ा ज्यादा ऐप लगता है as compared to, और स्पेसिफिक जा रहा है कि हाँ, I mean it kind of makes sense. It does, like I don't know. Kinda. It makes sense, bro. It does make sense, bro. Nobody is too beautiful to hustle. Shut your fucking mouth and work. It's as simple as that. And if your mouth is sucking cock, then don't. That is also hard work. If you're getting paid. Yeah. That's prostitution. Defense attack, but that is so true. This is actually really true. This is मतलब इसको बोलते हैं observations. Because see, I mean logically, when you want to attack, when you know you're right, so you just want to get it out. Type send, because you don't want the other person to send. Yeah. कि मेरी बारी है, मैं बोल रहा हूँ. Defense में you're taking your time कि इसने बोल दिया, now I need to frame everything properly. You're being politically correct. And ऐसा कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे offend भी हो जाए, मेरी बात भी रख दूँ. ऐसे पहले तो नोट्स में prep हो रहा है. पहले नोट्स में टाइप कर रहा है. हाँ, फिर वहाँ से copy paste हो गई जा रहा है. बट मतलब भाई, पर मेरे को ये देख के ना मेरे को बहुत गंदे फ्लैशबैक्स आ गए. बहुत गंदे फ्लैशबैक्स आ गए. टू कमेंट्स में लिखा है लिवरपूल आर्सेनल एफसी भी लिखा है, ब्रो पार्क द चेल्सी का भी नाम मेंशन हो गया है. थैंक यू. बट टू ऑल द गाइज वाचिंग दिस, अभी आपको पता है क्या होता है डिफेंस और अटैक. गो फॉर द अटैक. Okay, so we're done for the day, like for the night technically. But thank you so much for tuning in, and thank you so much for watching. Like this reaction segment was kind of a mixed bag. Where we saw some like 2-3 deep stuff. We got some eye openers as well. And 2-3 extremely deep stuff. Extremely deep stuff. I don't know, how much will make. Because there was something floating in the water. but yeah, any kind of constructive feedback, please feel to drop it in the comment section or slide into my DMs, not his comment. And we refined this a bit, like this is a very initial stage for us in terms of reaction. We'll have a proper process set up. We're just trying new stuff out. And probably our graphic designer will be of more help. Thank you once again. Subscribe to our channel, and we'll be back next Sunday. Thanks. Thank you.